Hi everyone, welcome to the 8th episode of Introduction to Fixed Income. Hopefully today the chapter will be complete. As we discussed earlier, there were various types of spreads: I spread, G spread and Z spread. So let's do some examples जिससे कि और clarity आ जाए about all these things. Let's say there are two bonds. One is treasury, one is corporate bond. This is the face value, coupon rate, time period, and this is the price. And from this information we can actually calculate YTM. And what will be the difference between corporate bond and treasury yield का YTM? That's known as G spread. तो यहाँ पे हम G spread easily calculate कर सकते हैं. इसका YTM calculate करेंगे, इसका YTM calculate करेंगे. इन दोनों का difference will be G spread. Let's say there is 5-year swap rate which is given. So how will you calculate I spread? That is YTM of this corporate bond less 6.8%. So in this way you can calculate this. You can pause the video, calculate yourself. It's a very easy question. Let's say there are two identical bonds. One is having a G spread. See, spread means additional return. G spread of 90 basis points and G spread of 95 basis points. Which one will you prefer? Obviously we will prefer with the higher spread, provided everything else is same. Everything else के बारे में discussion अभी हम करने वाले हैं within next 2-3 minutes. Treasury spot rates हैं कुछ. हाफ ईयर का इतना है, 1 ईयर का इतना है, 1.5 ईयर का इतना है, 2 ईयर का इतना है. हमें 2 ईयर कॉर्पोरेट बॉन्ड की प्राइसिंग निकालनी है. प्रोवाइडेड 1000 फेस वैल्यू है, 9% सेमी एनुअल कूपन है एंड Z स्प्रेड इज 2.3% और 230 बेसिस पॉइंट. सो हाउ विल वी कैलकुलेट? 7 प्लस 2.3 कितना हुआ? 9.3. So we will discount the cash flows by 9.3%, but since this 9.3 is standing at half year, तो half year के लिए 9.3 को क्या करेंगे? 1.093 raised to the power 1/2 half, और ऊपर लिखेंगे कैश फ्लो. हमारा कूपन कितना है? लेट मी सी द कूपन इज हमारा 9%, दैट इज 90. But 90 coupon नहीं लेंगे, coupon we will take 45 because it is half yearly. So how we will write? 1.093 raised to the power 1/2 और ऊपर लेंगे 45 plus 45 divided by next rate is 7.4 plus 2.3. How much is it? 9.7. So this will be 1.097 plus 45 divided by how much is now 7.5 plus 2.3. This is 9.8 divided by 1.098 raised to the power 1.5 because it is of 1.5 years. And now 8 plus 2.3, that will be 10.3. So 1.103 raised to the power 2 and ऊपर कितना आएगा? 1045. This is how you will actually calculate the price of this bond. It is very easy. Same आपको वही मेथड लगाना है. कौन सा मेथड? जिसमें हम इन सब से डिस्काउंट नहीं करना, हमें इसमें सब में 2.3 ऐड करना है एंड उस रेट से डिस्काउंट करना है. क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. Z स्प्रेड ऐड करना. 10 ईयर का ट्रेजरी नोट 8.2% दे रहा है. प्राइस निकालना है कॉर्पोरेट बॉन्ड की. देखिए ये है ट्रेजरी और निकालना है हमें कॉर्पोरेट, तो हमें स्प्रेड को ऐड करके डिस्काउंट करना है. स्प्रेड कितना दिया हुआ है? 140 बेसिस पॉइंट्स का. तो उस केस में क्या करेंगे? YTM को 8.2 प्लस 1.4, 8.2 प्लस 1.4 दैट विल बी 9.6. तो हम 9.6 को I/Y लेंगे. 10 ईयर्स का है तो 10N लेंगे. 10% कूपन है, दैट इज 100 पेमेंट लेंगे. 1000 फेस वैल्यू है तो 1000 FV लेंगे एंड वी विल कंप्यूट द प्राइस. तो कंप्यूटेशन इज वेरी इजी. यू जस्ट नीड, इसको समझ लो कि स्पॉट रेट्स में से कुछ माइनस किया हुआ है तो उसको वापस हम ऐड कर रहे हैं एंड देन वी आर कैलकुलेटिंग द बॉन्ड प्राइसिंग इन द नॉर्मल यूजुअल मैनर. जनरली Z स्प्रेड को जीरो वॉलेटिलिटी स्प्रेड कहते हैं क्योंकि ये यील्ड की वॉलेटिलिटी को इग्नोर करता है. मतलब अगर एक नॉर्मल बॉन्ड है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर एक कॉलेबल, पुटेबल, MBS बॉन्ड्स हैं, MBS है, उस केस में थोड़ा सा इशू आ जाता है. क्या होता है हम उसकी बात करते हैं. कॉलेबल बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें मैं अगर बॉन्ड को इशू कर रहा हूँ तो मेरे पास राइट है कि बॉन्ड अगर ज़्यादा भाग गया तो मैं आपको ज़्यादा पैसे नहीं दूंगा. That's known as callable bond. I can call the bond if the bond is trying to breach a particular level. So that's a good thing for you or a bad thing for you?
दैट्स अ बैड थिंग फॉर यू, एंड फॉर अ बैड थिंग यू विल पे अ हायर प्राइस और लोअर प्राइस, आप मुझे कम पैसा देना चाहोगे। सो ऑब्वियसली एक कॉलेबल बॉन्ड का प्राइस कम होगा एज कंपेयर टू अ नॉन कॉलेबल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि कॉलेबल बॉन्ड बुरी चीज़ है और बुरी चीज़ के हम कम पैसा देना चाहेंगे, एंड कम पैसे देंगे तो रिटर्न क्या होगी? ज़्यादा। तो कह सकते हैं कॉलेबल बॉन्ड की रिटर्न, कॉलेबल बॉन्ड का जो जेड स्प्रेड होता है वो ज़्यादा होता है एक नॉन कॉलेबल बॉन्ड से। लेकिन क्या एक कॉलेबल और नॉन कॉलेबल बॉन्ड को कंपेयर कर सकते हैं? नो, क्योंकि कॉलेबल तो बुरा है और बुरे में तो ज़्यादा होगा ही। ये तो वही बात होगी कि एक पर्सन है जो 5th क्लास में बैठा है और एक पर्सन 7th क्लास में बैठा है, तो 7th क्लास वाले की नॉलेज नॉर्मली ज़्यादा ही होगी 5th वाले से। तो कंपेयर तो कर ही नहीं सकते 5th और 6th वाले से 7th वाले से। ये कर सकते हैं कि 7th क्लास वाले की जो नॉलेज है उसमें से 7th की नॉलेज और 6th की नॉलेज अगर रिमूव कर दे देन इट इज़ कंपेरेबल। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं कि कॉलेबल बॉन्ड की जेड स्प्रेड हमेशा ज़्यादा होगी, तो कॉलेबल और नॉन कॉलेबल को तो कंपेयर नहीं कर सकते। तो कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, उस जेड स्प्रेड में से, इस कॉलेबल वाले जेड स्प्रेड में से हम एक पार्ट हटा देंगे। क्या पार्ट? जो कॉल ऑप्शन है। मैं कभी भी कॉल कर सकता हूँ, मैं कंपनी हूँ, मैं इशूअर हूँ, मैं कभी भी कॉल कर सकता हूँ बॉन्ड को अगर एक सर्टेन प्राइस आया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उस सर्टेन कॉस्ट को हटा देता हूँ और ये मान लूँगा कि अगर इसमें वो ऑप्शन नहीं होता तो इसका यील्ड कितना होता। दैट्स नोन एज OAS, ऑप्शन एडजस्टेड स्प्रेड। कोई भी दो बॉन्ड जो कि कंपेरेबल नहीं हो सकते, कौन से कंपेरेबल नहीं हो सकते? कॉलेबल नॉन कॉलेबल से कंपेयर नहीं हो सकता, पुटेबल नॉन पुटेबल से कंपेयर नहीं हो सकता। तो क्या करना चाहिए हमें, उस कॉलेबल में से कॉल का फीचर हटा दो, पुटेबल में से पुट का फीचर हटा दो और फिर जाके कंपेयर करो। और जो फीचर हटा के जो स्प्रेड आता है ना, उसे कहते हैं OAS, ऑप्शन एडजस्टेड स्प्रेड। जेड स्प्रेड में से कुछ हटाते हैं जिससे कि ताकि हम नॉन कॉलेबल बॉन्ड को एक कॉलेबल बॉन्ड से कंपेयर कर पाए। तो कॉलेबल बॉन्ड का जो जेड स्प्रेड है दैट इज कंपेयर्ड टू कॉलेबल बॉन्ड का एक जेड स्प्रेड आया, उसमें से कुछ रिमूव किया, दैट्स नोन एज OAS। नाउ दिस OAS इज एक्चुअली कंपेरेबल टू द जेड स्प्रेड ऑफ अ नॉर्मल बॉन्ड। पुटेबल बॉन्ड क्या होता है? मेरे पास राइट है कि अगर बॉन्ड बहुत ज़्यादा गिर गया तो मैं उससे पहले एक बेटर रेट पे इसको बेच कर निकल सकता हूँ। आई हैव अ राइट, मेरे पास एक पुट ऑप्शन है, राइट टू सेल, मैं इसको जल्दी बेच सकता हूँ। तो इट इज़ अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? ये तो गुड थिंग होगी, और गुड थिंग के लिए आपसे पैसे लेंगे। तो पुटेबल बॉन्ड का प्राइस महंगा होता है एज कंपेयर टू अ नॉन पुटेबल सिमिलर बॉन्ड। मॉर्टगेज्ड बैक सिक्योरिटीज, ये वो सिक्योरिटीज होती है जिसके अगेंस्ट होम लोन्स एंड ऑल दीज थिंग्स आर देयर। तो उस केस में हिडन ऑप्शन होता है जो कि होम ओनर एंजॉय करता है, जिसके पास घर है। तो उस केस में हमारे पास राइट होता है कि मैं जल्दी पे कर पाऊं। सिंस दे आर ऑप्शंस, इफ द रेट्स मूव इन देयर फेवर दे आर एक्सरसाइज्ड। वही मैंने बताया कि अगर मेरे अगर फेवर में चला जाएगा तो एक्सरसाइज हो जाएगा, और अगर नहीं गया तो लैप्स हो जाएगा नॉर्मली। उस केस में OAS की बात की गई है। YTM जो होता है, YTM इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव यील्ड फॉर ऑप्शन एम्बेडेड बॉन्ड। ऑप्शन एम्बेडेड में कभी भी YTM नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन एम्बेडेड जो ऑप्शन वाला बॉन्ड होता है वो अलग इंटरेस्ट रेट्स पे अलग तरीके से बिहेव करता है। हाउ? आने वाले हम सेशन में इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑप्शन एंजॉयड बाय इशूअर या होम ओनर, मैंने बॉन्ड इशू किया, मैं होम लोन मैंने लिया है, मेरी साइड से MBS इशू हुआ है, तो मैं ये चीज़ एंजॉय करता हूँ, सामने वाला दुखी है। तो इस चीज़ में क्या होता है, मेरे लिए अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है? मेरे लिए तो अच्छी चीज़ है, आपके लिए बुरी चीज़ है, एंड क्योंकि आपके लिए एक बुरी चीज़ है तो आप उसके लिए पैसे कम दोगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं पैसे कम दूंगा तो YTM ज़्यादा या जेड स्प्रेड ज़्यादा, एनीथिंग कैन बी सेड। एक ऑप्शन है जिसमें आप इंजॉय करते हो। क्यों? क्योंकि आपकी मर्जी है कि एक बॉन्ड अगर 900 से नीचे चला गया, आपको राइट है कि हम 900 पे बेच सकते हो मुझे। वो बॉन्ड 800 700 कहीं भी चला जाए, आप मुझे 900 का ही बेच के जाओगे, उससे कम का सारा मेरा लॉस है। तो ये मेरे लिए बुरी चीज़, आपके लिए अच्छी चीज़ है, एंड क्योंकि आपके लिए अच्छी चीज़ है आप इसके लिए हायर प्राइस दोगे, और हायर प्राइस का मतलब आपको जो रिटर्न मिलेगा वो कम मिलेगा, YTM कम मिलेगा या फिर जेड स्प्रेड कम मिलेगा। टू कंपेयर यील्ड्स ऑन दीज बॉन्ड्स विद यील्ड ऑन स्ट्रेट बॉन्ड्स वी हैव टू एडजस्ट। मैंने जैसे बताया एडजस्ट करना पड़ता है, इसमें से ऑप्शन का इफेक्ट को रिमूव करना होता है। और नॉन कॉलेबल बॉन्ड
जेड स्प्रेड हो या OAS हो, एक ही बात होती है, क्योंकि उसके अंदर तो कोई इफेक्ट ही नहीं होता जो हटाना होता है। तो हमेशा कॉलेबल नॉन कॉलेबल कंपेयर करने के लिए हमें सबको OAS में कन्वर्ट करना होता है, एंड वन OAS कैन बी कंपेयर टू अदर OAS, क्योंकि OAS में से हम सारे ऑप्शंस के इफेक्ट को हम रिमूव कर देते हैं। कॉलेबल बॉन्ड क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ है, हाउ इट इज़ एक्चुअली दी होल मीनिंग ऑफ द कॉलेबल बॉन्ड, कभी भी कॉल कर सकते हैं। तो जनरली एक कॉलेबल बॉन्ड का स्केड्यूल दिया होता है। स्केड्यूल मतलब कि 4 ईयर्स में कॉल करेंगे इस रेट पे, 7 ईयर्स को कॉल करेंगे इस रेट पे, 15 ईयर्स पे कॉल करेंगे पार पे। मतलब इट कैन हैपन डिपेंडिंग कि कितनी वॉलेटिलिटी है, कितनी मूवमेंट आ रही है, एंड दिस इज एक्चुअली रिडीमेबल एट आफ्टर 20 ईयर्स एट पार। तो इसमें अलग अलग तरह की यील्ड होती है। एक होता है यील्ड टू फर्स्ट कॉल। यील्ड टू फर्स्ट कॉल कुछ नहीं है, हम ये मानते हैं कि बॉन्ड यहाँ पर कॉल हो गया, अब बताओ बॉन्ड का कितना प्राइस चल रहा होगा। आई थिंक प्राइस निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यस सॉरी प्राइस नहीं निकाल रहे, प्राइस तो ऑब्वियसली दिया होगा, हम यहाँ पे निकाल रहे हैं कि YTM कितना होगा, मतलब अब तक इन्वेस्टर ने 4 साल में कितना कमाया ऑन एन एवरेज पर ईयर। इस क्वेश्चन को करने का बहुत ईजी तरीका, आप भूल जाओ आगे कुछ दिया हुआ है, आप ये मानो 4 ईयर का बॉन्ड है, 1150 पे रिडीमेबल है, 1000 FV है, 90 कूपन है, और दिस इज द प्राइस। नाउ कंप्यूट I/Y, एज सिंपल एज दैट। क्वेश्चन का है कि यील्ड टू 7th ईयर कॉल, क्या नाम दिया, यील्ड टू सेकंड कॉल। ऑब्वियसली सेकंड टाइम जब कॉल करेंगे 7 ईयर्स बाद, तो आपको सब कुछ भूल जाना है, 7N डालना है, 1000 FV डालना है, 972 आपको डालना है प्राइस, 90 आपको डालना है PMT, एंड 1110 को डालना है FV, एंड यू विल कंप्यूट I/Y। होपफुली आप समझ गए होगे किस तरीके से करना है। यील्ड टू फर्स्ट कॉल, यील्ड टू सेकंड कॉल, यील्ड टू थर्ड कॉल, यील्ड टू फाइनल कॉल। फर्स्ट सेकंड इसको फाइनल कहेंगे, यील्ड टू फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल, एंड दिस इज तो नॉर्मल जैसे रिडम्पशन हो रही है। एक होता है यील्ड टू वर्स्ट। यील्ड टू वर्स्ट क्या होता है, आप चारों को कैलकुलेट करेंगे, हम निकालेंगे सबसे कम I/Y किस में आ रहा है, दैट्स नोन एज यील्ड टू वर्स्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल जैसे दिया हुआ है। तो आई थिंक कि आज के सेशन के लिए ना इतना रखते हैं, बिकॉज आई थिंक इट विल बी वेरी हैवी। मुझे लगा था कि ये सेशन में हम ख़त्म कर पाएंगे, बट थोड़ा सा यहाँ पे रहता है, यस बहुत रहता है, बट येस आई थिंक आई शुड नॉट हरी कि हाँ इस सेशन में कंप्लीट कराना है, बट येस वी विल बी कंप्लीटिंग दिस बाय द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू, बाय बाय।